دوسری جانب حادثے میں شہید عبدالقیوم کے بھائی کہتے ہیں کہ کراچی میں ڈی این اے ٹیسٹ سے تصدیق کے بعد ہی بھائی کی لاش ان کے حوالے کی گئی۔ ان کے پاس رپورٹ موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب فورنزک سائنس لیبارٹری میں ڈی این اے سیمپلز دے دیے ہیں مگر اس کی رپورٹ انہیں نہیں ملے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ احمد مشتبہ کی فیملی نے ان کے گھر آ کر لاش لے جانے کی باتیں کی ہیں۔ کہہ رہی تھی کہ جی وہ ہماری باڈیز ہیں، آپ کو غلط ہینڈ اوور کی ہے، ہم وہاں سے لے جائیں گے یا کوئی اس طرح کی جو بھی بات ہے نا، ان کا ہمارے سے یہ ڈیمانڈ بنتی نہیں ہے۔ نہیں، یہاں پہ گھر آ کے ان کی مدر تھی غالباً، تو وہ میری والدہ سے بات کی کہ جی یہ ہماری باڈی ہے۔ اچھا یہ دیکھیں نا کہ ہمارے پاس یہ رپورٹس ہیں، ان کے پاس تو اس طرح کی کوئی رپورٹس بھی نہیں ہیں۔ جو ڈی این اے کی رپورٹس بھی ہیں وہ بھی ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں، تو رپورٹس میچ ہونے کے بعد انہوں نے جو ہے نا ہم تک یہ باڈیز کو پہنچایا ہے۔ اور یہ ڈاکٹر اشتیاق احمد خان صاحب انچارج ہیں سندھ فورینزک ڈی این اے لیبارٹری کے، تو باقاعدہ ان کے سگنیچر ہیں، مدر کا، فادر کا، میرا دوبارہ سے، پھر عبدالقیوم اشرف جو فلائٹ میں شہید ہوئے ہیں ان کے بیٹے کا بھی ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے وہ پنجاب فورینزک میں ٹیسٹ جمع ہو چکا ہے۔ ان کی رپورٹس جو ہے نا، ہمارے جو ڈی این اے ٹیسٹ لیا گیا ہے ان کی رپورٹس نہیں وہ ابھی ایشو کریں گے، وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو باڈی آ چکی ہے ہمیں ان سے صرف میچ کرنا ہے۔ وزیر برائے ہوا بازی غلام سرور خان نے طیارہ حادثے کی ابتدائی رپورٹ 22 جون کو پیش کرنے کا اعلان دہرا دیا ہے۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ آج جو پی آئی اے کا حال ہے اس کا کوئی تو ذمہ دار ہے۔ ماضی قریب میں جعلی ڈگریوں پر قومی ایئر لائن میں بھرتیاں کی گئی۔ اتنے حادثے، اور اگر میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو، اپنے فلیٹ کو دیکھتا ہوں کہ 31 ایئر کرافٹس کا فلیٹ ہے اور اتنے حادثوں کا شکار ہو رہا ہے، کچھ تو وجہ ہے، کوئی تو اس کا ذمہ دار ہے، کسی کو تو ذمہ داری لینی ہوگی، کسی کو ذمہ دار ٹھہرانا ہوگا، کسی کے گلے تک ہاتھ لے جانا ہوگا۔ اب ہو، احتساب ہو، انکوائری ہو، فری اینڈ فیئر ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، ذمہ دار کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے اور اس سے اس کا حساب لیا جائے۔ تو یہ ذمہ داری اس ناچیز کی ہے، حکومت وقت کی ہے کہ انشاءاللہ تعالی فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہوگی، اور اس انکوائری کی ابتدائی رپورٹ 22 مئی کا واقعہ ہے، 22 جون کو انشاءاللہ تعالی اسی معزز ایوان میں پیش کی جائے گی۔ دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے کا مشن پاکستان نے ایف اے ٹی ایف کے مطالبے پر عمل درآمد کے لیے وزارت داخلہ میں خصوصی سینٹر قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نئے بجٹ میں فنڈز بھی مختص کیے جائیں گے۔ سینٹر کے قیام پر کتنی رقم خرچ ہوگی اور اس کے کام کا طریقہ کار کیا ہوگا، تفصیلات کے لیے اسلام آباد سے عادل تنولی کی رپورٹ دیکھیے۔ دہشت گردوں تک فنڈز کسی صورت نہ پہنچے، پاکستان کی سنجیدہ کوششوں میں مزید تیزی، ایف اے ٹی ایف کا ایک اور بڑا مطالبہ پورا کر دیا، وزارت داخلہ میں خصوصی سینٹر قائم ہو گیا۔ سما کی حاصل کردہ دستاویز میں بتایا گیا کہ کاؤنٹر ٹیررزم اینڈ کیس مینجمنٹ سسٹم کا مقصد دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنا ہے۔ وزارت داخلہ میں خصوصی سینٹر مشکوک ٹرانزیکشنز کی روک تھام کے لیے ایف آئی اے کو جدید خطوط پر استوار کرے گا۔ دستاویز کے مطابق سینٹر کے قیام پر 1 ارب 4 کروڑ روپے سے زائد کی لاگت آئے گی۔ آئندہ مالی سال میں منصوبے کے لیے 25 کروڑ روپے سے زائد فنڈز مختص کرنے کی تجویز۔ ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ میں جدت لانے کے لیے مزید 30 کروڑ روپے بھی رکھے جائیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اسٹیل ملز نجکاری کے خلاف قومی اسمبلی میں پلے کارڈز اٹھا کر احتجاج کیا۔ پی پی کے آغا رفیع نے اپوزیشن ارکان کو پلے کارڈز تھما دیے، جس پر ڈپٹی اسپیکر برہم ہو گئے، وارننگ دی کہ رولز کی خلاف ورزی نہ کریں۔ وفاقی وزیر مراد سعید بولے، پاکستان اسٹیل کی نجکاری کا فیصلہ تو مسلم لیگ نون کے دور میں ہوا، منافع دینے والے ادارے کو پیپلز پارٹی نے خود ہی تباہ کیا۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ قومی اسمبلی میں پاکستان اسٹیل کی نجکاری کے خلاف دوسرے دن بھی احتجاج۔ پیپلز پارٹی کے آغا رفیع پلے کارڈ لیے ایوان میں آ گئے، ارکان کو بھی پلے کارڈز تھما دیے۔ آپ اپنی بات کریں اپنی چیئر پہ جا کے، آپ کو پورا حق ہے، آپ کسی بھی موضوع پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ رول کی وائلیشن نہ کریں۔ یہ آپ جو ہے دیکھیں، یہ اس
कौमी असम्बली के मेंबरान ने रूल बनाए हुए हैं, आप इस रूल की वायलेशन ना करें। वफाकी वजीर मुराद सईद ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, पाकिस्तान स्टील की तबाही का आगाज उसी दिन हो गया था जब ये पहली बार 90 की दहाई में खसारे में गया। मुशर्रफ दौर में 9.2 अरब मुनाफा कमाने वाले इदारे को पीपल्स पार्टी ने अगले साल खसारे का शिकार कर दिया। जिस वक्त काम चल रहा था स्टील मिल के ऊपर, उसी वक्त उसको बंद कर दिया। और मैं मीडिया को कहता हूँ, स्पीकर साहब, मैं पीपल्स पार्टी नून लीग वालों को, स्पीकर साहब आपको कहता हूँ कि कैमरों के साथ चलते हैं उस स्टील मिल के अंदर, उसको खोलते हैं और दिखाते हैं स्पीकर साहब की किस बेदर्दी से उस स्टील मिल को बंद कर दिया गया था 2015 में। मुराद सईद ने कहा कि पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून, दोनों ने ही इदारों को तबाह बर्बाद किया है। लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने कोरोना वायरस के खिलाफ प्लाज्मा थेरेपी से 200 मरीजों का इलाज मुमकिन बना लिया। माहिरीन ने वायरस से सेहतियाब होने वाले मरीजों से प्लाज्मा अतिया करने की अपील भी की है। रिपोर्ट करेंगी तहमीना अहमद। कोरोना अब कुछ अरसे के लिए जिंदगी का हिस्सा रहने वाला है, तिब्बी माहिरीन ने खबरदार कर दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि सिर्फ 5% लोग तशवीशनाक हालत तक पहुंचते हैं जिन्हें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। कोरोना की बढ़ती हुई शरह में ठहराव लाने के लिए सख्त कर्फ्यू नाफिज करने की जरूरत है। 15 दिन के लिए मुवस्सर वो वाला लॉकडाउन नहीं जो पहले हुए हैं, वो लॉकडाउन कहना फजूल है, वो लॉकडाउन नहीं थे, ना स्मार्ट ना अनस्मार्ट, मैं कहूँगा कि टोटल कर्फ्यू। और मैं समझता हूँ कि ये कर्फ्यू नाफिज करने के लिए हमारी पाकिस्तानी अफवाज को बीच में हिस्सा लेना पड़ेगा। आज से यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में IgG का तरीका भी शुरू किया जा रहा है, जिसके जरिए कोरोना के मरीज की कुव्वत मुदाफत बढ़ाने के लिए उसमें एंटीबॉडीज इंजेक्ट की जाएंगी। जिनको भी पैसिव इम्यूनाइजेशन करनी है प्लाज्मा के जरिए, या आज से अब जो इम्यूनोग्लोबुलिन का ट्रायल स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह, तो उसके अंदर भी पेशेंट सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी जो उनसे जो इंसानियत के नाम पे जो अपील की जा रही है वो उस तरीके से रिस्पांस नहीं आ रहा और वो प्लाज्मा शायद अभी तक नहीं दे पा रहे। एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद करने की तलकीन के साथ डॉक्टर्स का कहना था कि लोगों को बिला वजह निजी लेबोरेटरियों से महंगे टेस्ट कराने की जरूरत नहीं। अगर किसी में अलामात हों तो घर पर ही अपने आप को करंटीना कर लेना बेहतर है। डॉक्टर्स ने दिल और ब्लड प्रेशर के मरीजों को खसूसी एहतियात करने की हदायत भी की है। कैमरामैन खबर महमूद के साथ तहमीना अहमद, समा, लाहौर। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा कहते हैं कि आलमी इदारा बराए सेहत की तजावीज़ पर अमल दरामद ज़रूरी नहीं। समा के प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने 2 हफ्ते लॉकडाउन और 2 हफ्ते नरमी की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था एडवाइजरी देना WHO की जिम्मेदारी है, ज़रूरी नहीं कि इस पर अमल भी किया जाए। पाकिस्तान में दूसरी बीमारियों से कोरोना की निस्बत ज़्यादा लोग मरते हैं, डेली मरते हैं। सिर्फ वसाइल की दस्तियाबी का मसला नहीं, पाकिस्तान में वसाइल की मैनेजमेंट का मसला दस्तियाबी से भी बड़ा मसला। आलमी इदारा सेहत जो है उनका एक ये रोल है कि वो अपने जो मेंबर स्टेट्स होते हैं उनकी सूरत हाल को देख के अपनी बेस्ट एडवाइस, अपनी रिकमेंडेशंस वो देते हैं अपने माहिरीन की मदद से। ये जो रिकमेंडेशंस होती हैं ये रिकमेंडेशंस होती हैं, ये कोई पाबंदी नहीं होती कि आपने ज़रूर उनके ऊपर अमल करना है। इस वक्त कोई ऐसी तजवीज़ हमारे मद्देनज़र नहीं है, मैं वाज़े तौर पे आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन कुछ सेक्टर्स अभी भी हमारे बंद हैं, वो बंद ही रहेंगे। सही। और कुछ जो हमारी जो इस वक्त हमारा जो एम्फेसिस है वो इस चीज़ के ऊपर है कि हम SOPs के ऊपर लोगों को पाबंद करना सिखाएं। रावलपिंडी में अंदरूने शहर चलने वाली ट्रांसपोर्टर्स के अब तक 1.25 लाख रुपए के चालान हो चुके हैं। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि इन हालात में तो उनका पहिया नहीं चल सकता। उमर आसिफ की रिपोर्ट। कोरोना गर्दी के दौर में गाड़ियों का पहिया चलाने के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद लाजिम। रावलपिंडी में भी इंतजामिया ने खिलाफ वर्जी करने वालों की खूब खबर लेना शुरू कर दी। 120-30 या कोई इससे इतनी गाड़ियाँ जो हैं वो हमने उनको चालान किए हैं, और जो फ़ाइन हमारे हैं वो भी कोई 1 लाख और 14-15 हज़ार या 20 हज़ार हमने फ़ाइन भी किया है इस दौरान। इंतजामिया ने डंडा उठाया तो ट्रांसपोर्टर सीना जोरी पर भी उतर आए। कहते हैं ऐसे तो काम नहीं चल सकता। ट्रांसपोर्ट जी गुंजाइश है 2-4 बंदे कर रहे हैं, और इतनी कट्ठियां कि बंदे मना नहीं कर सकते। बैठती हैं 10-12 सवारियाँ,
अगर 3-4 सवारियां लेके जाएंगे तो हमारा क्या बचेगा। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी ही नहीं, जायद किराए वसूल करना भी ट्रांसपोर्टर्स को महंगा पड़ेगा। इंतजामिया ने 2 टोकन तबाह कर दिया। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। बजट करीब आते ही क्लर्कों को अपने मसाइल याद आ गए हैं। जेलों में दूसरे दिन भी ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की अपील पर हड़ताल की गई। इम्तियाज़ बेग की रिपोर्ट। जेलम में मुतालबात की मंजूरी के लिए ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की कलम छोड़ हड़ताल का दूसरा दिन। हमारे मुतालबात पूरे किए जाए। क्लर्क्स कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, तनख्वाहों में इजाफे के साथ सहूलतें भी दी जाएं। इस तरह सेक्रेटरीट की तनख्वाहें, यूटिलिटी अलाउंस वगैरह हैं, इसी तरह हमारे सब के साथ एक यकसान सलूक किया जाए। पाकिस्तान एक है, इम्तियाजी सलूक को ख़त्म किया जाए। तमाम पाकिस्तान की जितनी तनख्वाहें बढ़ रही हैं हमारी भी बढ़ाई जाए। क्लर्क्स की हड़ताल के सबब साइलिन मुश्किलात का शिकार हो गए। आजकल जिस तरह महंगाई का तनासब है उस हिसाब से हमें जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। हमारी तनख्वाह को बढ़ाया जाए और 100% बढ़ाया जाए। क्लर्क्स कहते हैं कि हुकूमत मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करे, वरना एहतजाज का ये दायरा मजीद बढ़ सकता है। इम्तियाज़ बेग, समा, जेहलम। पार्क लेन रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी और दीगर पर फर्द जुर्म 26 जून को आयद की जाएगी। एहतसाब अदालत ने तारीख मुकर्रर कर दी है। जाली अकाउंट्स केस के दीगर 5 रेफरेंसेस की समाअत 7 जुलाई को होगी। इस्लामाबाद से देखिए सुहेल रशीद की रिपोर्ट। जाली अकाउंट केस का पार्क लेन रेफरेंस नैब की दरखास्त पर दीगर रेफरेंसेस से अलग कर दिया गया। एहतसाब अदालत में नैब की सीनियर प्रोसिक्यूशन टीम खुद पेश। कहा पार्क लेन केस ही 1 साल से हाजिरियों और मेडिकल सर्टिफिकेट से आगे न बढ़ सका। लंबी तारीखें देने से न केस आगे बढ़ेंगे न खत्म होंगे। पार्क लेन रेफरेंस में आसिफ जरदारी और दीगर पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख जल्द मुकर्रर करने की भी इस्तेदा। अदालत ने 26 जून की तारीख मुकर्रर कर दी। नैब ने बताया फर्द जुर्म के लिए अनवर मजीद की वीडियो लिंक हाजिरी का इंतजाम मुकम्मल कर लिया। आसिफ जरदारी और फरियाद तालपुर की ऑनलाइन हाजिरी पर जाले वकला के मुतजाद बयानात। लतीफ खोसा का वीडियो लिंक पर फर्द जुर्म पर सख्त एतराज। फारूक एच नाइक बोले जदीद जमाना है, जदीद आलात मौजूद हैं, पुरानी बातें खत्म हो गयी। वैसे भी दोनों की उम्रें 60 बरस से जायद और मुअम्मर अफराद कोरोना का ज्यादा शिकार हो सकते हैं। अदालत ने आसिफ जरदारी और फरियाद तालपुर की हाजिरी से 1 रोजा इस्तिस्ना की दरखास्त भी मंजूर कर ली। अदालत ने कहा वीडियो लिंक पर बयान और फर्द जुर्म के लिए तहरीरी हुक्मनामा जारी करेंगे। जिसको एतराज हो वो चैलेंज कर ले। जबकि जाली अकाउंट्स के ठट्ठा वाटर सप्लाई, पिंक रेजिडेंसी, शुगर सब्सिडी और फलाही प्लाटों की गैर कानूनी अलाटमेंट के रेफरेंसेस की समाअत 7 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। पंजाब में रोटी और नान की कीमत में इजाफा 2 रोज़ के लिए मौखर कर दिया गया है। नान रोटी एसोसिएशन इंतजामिया से आज मुज़ाकरात करेगी। तंदूर मालिकान का कहना है कि हुकूमत पुरानी कीमतें बरकरार रखना चाहती है तो मार्केट में आटा सस्ता कर दे। लाहौर से शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। रोटी और नान की कीमत में इजाफा 2 रोज के लिए टल गया। मौजूदा रेट पर आटा खरीदना पड़ा तो नान 15 रुपए और रोटी 10 रुपए की फरोख्त करेंगे। एसोसिएशन ने तैयारी कर ली। 2 दिन बाद हमने अपना रेट बढ़ा देना है, क्योंकि हम तो डेली नुकसान कर रहे हैं, तो हम कितना कुछ तावन करेंगे अवाम के साथ और गवर्नमेंट के साथ। नान भाइयों का मौकफ है कि आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा होने से अब पुरानी कीमत पर फरोख्त नहीं कर सकते। रमजान में ये बोरी 4200 रुपए की थी, अब आवाज आई है कि जी ये बोरी जो है ना ये 5000 रुपए की है। अब क्या करें? हमारी मजबूरी है, हम मजबूरी से बढ़ा रहे हैं, हमारा खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। शहरियों का कहना है कि कोरोना की वजह से लोगों के काम बंद हैं। हुकूमत को सस्ती रोटी फराहम करने के लिए फौरी रिलीफ देना चाहिए। कैमरामैन नजर इकबाल के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी कोरोना मुतासरीन की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। शहरियों ने हुकूमत से सख्त लॉकडाउन का मुतालबा कर दिया है। पवन कुमार की रिपोर्ट। सिंध में कोरोना केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा। हैदराबाद में एक्टिव केसेस की तादाद 1200 से जायद हो गई। शहरियों का कहना है हिफाजती इक़दाम पर कोई भी अमल करने को तैयार नहीं। दिन ब दिन हैदराबाद में भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पूरे मुल्क में 1 लाख से जायद केसेस हो चुके हैं। दिन ब दिन सूरत हाल खराब हो रही है। हुकूमत को चाहिए कि लॉकडाउन को मजीद सख्त किया जाए। शहर के दुकानदारों ने खरीदारों के रवैये को गैर संजीदा करार दे दिया। कारोबार करें या लोगों को मास्क पहनाएं, मकसद जो आता है ग्राहक तो वो बिल्कुल ना सैनिटाइजर इस्तेमाल करता। हम उसको सैनिटाइजर कहते नहीं बस ठीक है, कोई एहतियात नहीं है, कोई पुलिस वाला कोई इम्प्लीमेंट कराने के लिए तैयार नहीं है। शहरियों की जानिब से SOPs की खिलाफ वर्जी अगर इसी तरह जारी रही तो मस्बत केसेस की तादाद में इजाफे का खदशा है। कैमरामैन कामरान खान के साथ पवन कुमार, समा, हैदराबाद। कोरोना वायरस की वजह से बेरोजगार होने वाला पेशावर का मौसीकार इस्लामाबाद पहुंच गया। हुकूमत और आवाम से मदद की अपील कर दी। वहाब कामरान की रिपोर्ट।
8 बरस से रबाब नवाजी ही जरिया मुआश, लेकिन कोरोना गर्दी के बायस तो फनकार बरादरी को भी खाने कमाने तक के लाले पड़ चुके। शौकत सखी ने 2 माह तक पेशावर में ही हालात मामूल पर आने का इंतजार किया, मगर बात न बनी तो किस्मत आजमाने इस्लामाबाद पहुंच गया, लेकिन यहाँ भी कुछ न बन पड़ा। हमारा काम नहीं चल रहा, बिल्कुल बंद हो चुका है। अब इससे तो काम नहीं चलता ना, कम से कम कुछ न कुछ इनको तरतीब सोचना चाहिए। मारगला के दुश्वार रास्तों पर मीठी धुनें बखेरने पर दाद और इमदाद भी मिलती है, लेकिन इससे गुजारा भला कहाँ मुमकिन। किसी ट्रेल में या किसी जगह में इस तरह आ जाते हैं और हम लोग बस थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं। लोग काफी सारा एप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। शौकत सखी जैसे बेशुमार गुमनाम फनकार सफेद पोशी का भ्रम रखते हुए कोरोना गर्दी के वार सह रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि कोई तो हो जो इनका भी एहसास करे। कैमरामैन जाफत अब्बासी के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने वज़ीर आज़म के कामयाब जवान प्रोग्राम के लिए कर्ज की हद में इजाफे का फैसला कर लिया है। तफसीलात जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, बताइएगा कितना कर्जा मिलेगा? देखिए, अब कर्जे की हद जो है वो 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2.5 करोड़ रुपए मैक्सिमम कर दी गई है। बहुत बड़ा फैसला है जो आज इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में किया गया है। और दूसरी अहम बात यह है कि अब तमाम बैंक जो हैं वो ये कर्जा फराहम करेंगे नौजवानों को। इससे पहले सिर्फ 2 बैंकों को इजाज़त थी। और तीसरा इसमें अहम फैसला ये है कि जो शरह सूद होगी इन कर्जों पर वो 6 से 8% थी पहले, उसको कम करके 3 से 5% कर दी गई है। यानी अगर 5 लाख का कर्जा है 3%, और अगर 1 करोड़ का कर्जा है 4%, और अगर इससे ज्यादा है तो 5% शरह सूद का कर्जा मिलेगा। वज़ारत सेहत के लिए 7 अरब 24 करोड़ रुपए इससे ज्यादा की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की भी मंजूरी दी गई है। वज़ारत खारजा, नैब और दीगर इदारों की जो फंड थे उनकी भी मंजूरी दी गई है। और अहम बात यह है कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं जो कि कोरोना के खिलाफ काम कर रहे हैं मुख्तलिफ अस्पतालों में वफाकी, तो उनकी तनख्वाहों में इजाफे का फैसला किया गया है। 1 माह की इजाफी तनख्वाह दी जाएगी उनको रिस्क अलाउंस की मद में। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका शकील अहमद। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की वीडियो कॉन्फ्रेंस में उनका माइक जानबूझकर बंद किया गया। उनका कहना था कि पहले इस्लामाबाद आने से मना किया गया और अब बोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। वज़ीर आज़म कसूरवार नहीं, शायद उनका स्टाफ उनके कंट्रोल में नहीं है। जी, आप तो एक सेक्टर बात करें। मैंने कहा मैं क्या करूं, मुझे आप बात ड्यूरिंग द मीटिंग एक और भी बात हुई थी, खैर उसको छोड़ दो, मैं नहीं किया, मैं बता देता हूं। हमें म्यूट कर दिया गया। ये आप है ना, हम वीडियो कॉन्फ्रेंस पे थे, मैं बोलना चाहूँ तो मेरी आवाज़ ही ना जाए, वो कुछ सुने ही ना, मैं इधर ही बोल रहा हूँ। मैंने फिर अपने स्टाफ से कहा कि भाई ये देखो शायद कोई इशू है। कहा गया कि जी नहीं, हमें मना किया गया है कि जब इजाज़त मिलेगी तब आप बोलेंगे। पहले आने से मना इस्लामाबाद, अब बोलने से मना। मैंने ये भी रेस किया प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने। प्राइम मिनिस्टर ने मुझे अश्योर किया है, इसलिए मैं उनको कसूर नहीं, उनका स्टाफ पता नहीं शायद उनको कंट्रोल में नहीं है कोई भी चीज़। उन्होंने कहा जी मैंने किसी को मना नहीं किया कि किसी को म्यूट करे, सबको बोलने की इजाज़त है। मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ, मुझे ये कहा गया है, जो मेरे स्टाफ को मैसेज आया उनका कि जी ये हुक्म है कि जब इजाज़त मिलेगी तो आपको अनम्यूट करेंगे। ये पोजीशन तक हम पहुंच गए। और हुकूमत पंजाब ने MBBS के ज़िमनी इम्तहानात लेने की इजाज़त दे दी है। इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे दानियाल उमर हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल, हिफाजती इक़दामात उठाए जाएंगे फिर ही इम्तहान लिया जाएगा? जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ के ज़ेरे एहतमाम जो इम्तहानात हो रहे थे उनको महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने रोक दिया था और ये कहा था कि काबीना कमेटी ने इसकी इजाज़त नहीं दी और इम्तहानात नहीं लिए जा सकते, जिसकी अब काबीना कमेटी बराए इंसदाद कोरोना ने इम्तहानात की इजाज़त जो है वो दे दी है। और पंजाब हुकूमत ने ये कहा है कि जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं वो तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ जो ज़िमनी इम्तहानात हैं वो ले सकती हैं। साथ साथ जो सेक्रेटरी सेहत है नबील अवान, उनका ये कहना है कि पंजाब हुकूमत ने जो चंद रोज कबल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को इम्तहानात लेने से रोका था उस पर सिफारिशात अब काबीना कमेटी से की गई थी और पंजाब हुकूमत ने इसकी मंजूरी दी है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।